So first of all, the question will arise: why enrollment, or why migration? We already are registered in service tax or different VAT laws of various states. Maybe somebody may be registered in excise. So why a separate enrollment or registration or migration? A very valid question. Actually, all these departments have data which is very old, which may not be correct, which may not be updated, and that is why they need fresh data. The data, it's like it's an old cloth and different patches are there. So the data does not look good, it may not be new, and that is why they want a fresh fabric on which they can get the data. So that is why this process of enrollment is there. And as you're aware, there is no paper-based enrollment. Everything will, all this application of enrollment or migration will take place electronically on the GST Common Portal, which is www.gst.gov.in. And the enrollment process is the same for all the taxpayers. It is not that for VAT taxpayers it is different, for excise people it is different, for service tax assessees it is different. It is same for all. But they have initially started for the state VAT users only. And why is that? Because generally when a person is a VAT dealer, then he's covered under other laws. Like somebody may be registered only in excise, and generally it is not so. So if a person is registered in excise, then generally he is also a VAT dealer. Similarly, service tax, in some cases only service providers may be there. That is a different case. But whenever we are talking about sales or manufacture of goods, generally they go hand in hand, and whoever is an excise dealer is also a VAT dealer. That is why they have initially started with the VAT dealers, and once their registration is complete, then the remaining people, if some still remain, then the registration or enrollment will be done for them, and also for the service tax assessees. And there will be a common enrollment process for CGST, SGST and IGST. It is not that these three taxes are different and that is why separate enrollment will take place for these. That will not happen. What about multiple enrollments? Presently I may be registered in Delhi, Haryana, Maharashtra, Gujarat, but once this GST regime is coming, should I go for multiple enrollments? And if you have seen the draft law, they also say कि आप एक से ज़्यादा registration भी ले सकते हैं एक ही state के अंदर, अगर आपके different business verticals हैं, तो क्या हमें लेना चाहिए? There could be different reasons for taking or not taking multiple enrollments, particularly in a single state. तो वो आपका एक business decision होगा. लेकिन वहां एक बात का ध्यान रखिए कि जितने भी आप registrations लेंगे, whether in the same state or in different states, you will be treated as a distinct person for each registration. एक distinct identity है आपकी और आपको ध्यान रखना है, और इसका इसलिए important है क्योंकि हर किसी के लिए आपको अलग रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी, हर के लिए अलग असेसमेंट होगा. अगर कहीं डिमांड है तो वहां आपको डिमांड पे करना पड़ेगा. If there's some refund in some other state or in a different registration, you will have to pay that demand. So all these things, आपस में आपका ITC क्रेडिट आप नहीं बेनिफिट ले पाएंगे. तो एक ये बिजनेस डिसीजन है, और बिजनेस डिसीजन से ज्यादा मैं कहूंगा ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक प्रोफेशनल के लिए डिसीजन है, बनाने के लिए, अपने क्लाइंट के लिए बताने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए. प्रोबेबली क्लाइंट बिजनेस के तरीके से सोच सकता है, लेकिन ये सब चीजें हैं, ये आपको एडवाइस करना पड़ेगा अपने क्लाइंट को कि उसको मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस या मल्टीपल एनरोलमेंट्स के साथ जाना चाहिए या ना जाना चाहिए. सो आपका काम अभी से ही शुरू हो जाता है. ये नहीं कि आप वो कहे जी मुझे 4 स्टेट में रजिस्ट्रेशन था तो मेरा 4 स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और आप शुरू कर देते हैं. आपको वो काम नहीं करना, और आपको देखना है कि उसकी क्या जरूरत है, क्या उसको मल्टीपल एनरोलमेंट्स की जरूरत है तभी आप उसके लिए जाएं. देन कमिंग टू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये कॉन्सेप्ट सर्विस टैक्स से बोरोड है, आपको पता ही है, और वही कॉन्सेप्ट यहाँ आ गया है. और सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अगर कोई आप रजिस्टर करते हैं तो उसके लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, कोई माइग्रेशन नहीं होगा जैसे बाकी केसेस में हो रहा है. सो फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स देयर हैज टू बी अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी व्हिच इज नॉट एज येट ओपन.
तो जीएसटी जब आ जाएगा, जब लागू हो जाएगा, उसके बाद आईएसडी के लिए आप रजिस्टर कर पाएंगे। Now there could be some instances of your clients, or if we are talking about businessmen, that registration is not required under GST. ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए हो सकता है कि जैसे जीएसटी में अब टर्नओवर की लिमिट उन्होंने 20 लाख जनरल स्टेट्स के लिए रखी है और 10 लाख रखी है हिली रीजन्स के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। तो अगर आपका टर्नओवर उस लिमिट से कम है तो उसके केस में आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हो सकता है प्रेजेंटली आपका शायद 5 लाख ही होता हो किसी स्टेट में और आप हिली रीजन वगैरह में है, तो इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा क्योंकि आपका टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा है एनुअली। बट नाउ क्योंकि लिमिट हिली रीजन्स में भी 10 लाख की हो गई है, तो वहां अगर आपकी 10 लाख हो गई और आपकी 5-6 लाख की है तो आपको अभी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। In that case, you will have to file a form online which is GST REG 24. ये एक एप्लीकेशन है for cancellation of registration for the migrated taxpayers not liable for registration under GST. So this form has to be filled online, and reason for cancellation is that you have ceased to be liable to pay tax. तो अगर किसी केस में applicable नहीं है तो you can fill this form. And enrollment will take place in phases or stages. And why is that? Because the number of assessees is huge. We have around 80 lakhs indirect tax assessees, and उनका अगर सबका एक साथ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता तो प्रोबेबली साइट वो ट्रैफिक नहीं एक्सेप्ट कर पाती, सर्वर्स क्रैश कर जाते। एंड वैसे भी कोई इतनी बड़ी चीज की जाती है तो पीस में करना ठीक है, क्योंकि जो इश्यूज आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगे, दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड विद द स्मॉलर स्टेट्स। फर्स्ट फेज में उन्होंने गोवा, दमन दीव, गुजरात, पुदुचेरी, सिक्किम वगैरह महाराष्ट्र में किया था, तो इसीलिए स्टार्ट किया गया था कि यहां से पता लग जाएगा कोई प्रॉब्लम वगैरह आई तो। एंड इन द नेक्स्ट फेज which is currently running, which is again over from 30th of November to 15th of December. ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम वगैरह, झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ सब भी ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। एंड फेज 3 is currently running, which is from 16th of December to 31st of December. और जनरली जितने भी नॉर्थ या सेंट्रल स्टेट्स हैं, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ अभी प्रोसेस अंडरवे है। तो यहाँ इमीडिएटली आप शुरू कर दीजिए अगर आपने नहीं किया एनरोलमेंट का प्रोसेस, क्योंकि स्पेसिफाइड टाइम लिमिट्स हैं, टाइमलाइंस हैं जिनको हमको फॉलो करना है। और फाइनल फेज होगा 1st of January to 15th of January, which will be for आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड केरला। तो मोर और लेस सब लोग इसमें कवर हो जाएंगे। What about chartered accountants? What about advocates? What about actors? What about engineers? ये तो जनरली सर्विस टैक्स में ही रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनका एनरोलमेंट कब होगा? इन किसी फेजेस में होगा? नहीं, उनका जो एनरोलमेंट स्टार्ट होगा वो 1st of January से होगा, एंड इट विल कंटिन्यू फॉर द होल मंथ टिल 31st of January. तो सर्विस टैक्स असेसीज का जनवरी के मंथ में 2017 में माइग्रेशन या एनरोलमेंट का प्रोसेस होगा, सो प्लीज कंप्लीट ड्यूरिंग दैट टाइम। तो हमें जो प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड लेना है वो हमें जनरली मिलेगा वीएटी डिपार्टमेंट से, एंड आपको अगर नहीं मिलता तो आपको रेलेवेंट स्टेट डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना पड़ेगा। एंड डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट प्रोसेस है, एज वी कैन सी। कुछ स्टेट्स लाइक दादरा नगर हवेली में कहते हैं कि वैट के डिपार्टमेंट को आपको विजिट करना पड़ेगा। देन गोवा में भी उन्होंने कहा फिजिकली आपको जाके लेने पड़ेंगे यूजर आईडी एंड पासवर्ड। सिक्किम में भी ऐसे ही कहा गया, लेकिन बाकी जनरली स्टेट्स की अगर आप बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, या अभी जहां चल रहा है दिल्ली में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, यहाँ जनरली आपको अपने डीलर लॉगिन में मिलेगा ये आपका यूजर आईडी पासवर्ड। तो प्लीज टेक दैट फ्रॉम देयर। और उसके बाद तो आपने चाहे फिजिकली जाके लिया, चाहे आपको लॉगिन पे मिला, डीलर लॉगिन में मिला, या आपको ईमेल से मिला, इसके बाद यहाँ तक का तो प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है। इसके बाद जब आपको जाके इस तरह से आपको जैसे महाराष्ट्र की साइट पे हमें प्रोविजनल आईडी एंड पासवर्ड इस तरह से मिले, एक डॉक्यूमेंट भी मिला, इसका हम प्रिंट आउट ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद का प्रोसेस जो है वो सेम है। और उससे पहले एक बार हम देखें जो प्रोविजनल आईडी मिलेगी उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोविजनल आईडी? इट विल बी 15 डिजिट्स अल्फा न्यूमेरिक,
The first two digits will denote the state code. तो अगर आपका दिल्ली है तो 07 होगा. Then third to 12th characters will represent the PAN of the SSC. And आप कितनी भी states में अपना registration करा लीजिए, सब जगह आपके जो 3rd to 12th digits होंगे या alphabets होंगे वो PAN ही होंगे. 13 digit will be the entity code in the state. अगर आपने मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस लिए हैं उस स्टेट में तो फर्स्ट एंटिटी का नंबर 1 होगा, सेकंड रजिस्ट्रेशन का नंबर 2 होगा एंड नंबर 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. 14th उन्होंने अभी एक फ्यूचर डिजिट यूज के लिए रखा है तो उसको सब जगह यूनिफॉर्म आप देखेंगे Z ही है. एंड 15th इज चेकसम डिजिट व्हिच इज फॉर सम कंप्यूटराइज्ड ऑपरेशंस. यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट. तो ये आपका स्ट्रक्चर है प्रोविजनल आईडी का. एंड यही प्रोविजनल आईडी वंस रजिस्ट्रेशन इज फाइनल विल बी कन्वर्टेड टू योर GSTIN नंबर. तो यहां तक डिफरेंट प्रोसेस थे, डिफरेंट मोड्स थे, लेकिन वंस यू गेट द प्रोविजनल आईडी एंड पासवर्ड आगे का आपका जो रास्ता है वो एक जैसा ही है. तो आप जाएंगे सबसे पहले GST कॉमन पोर्टल पे विच इज www.gst.gov.in और वहां जाके जब पहली बार लॉगिन करेंगे किसी एसएससी के लिए तो आप न्यू यूजर लॉगिन पे क्लिक करेंगे. सो प्लीज क्लिक दैट. अब इससे पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है. एंड व्हाट आर दीज थिंग्स? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट द डेस्कटॉप ब्राउजर शुड बी ऑफ अ स्पेसिफाइड वर्जन. ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डेस्कटॉप वर्जन यूज कर रहे होंगे और आपका काम सब कुछ ठीक ठाक चलेगा. होना तो चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं तो द वर्जन शुड बी 49 एंड अबव. अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं तो वर्जन शुड बी 10 एंड अबव. और अगर आप फायरफॉक्स मोजिला यूज कर रहे हैं तो वर्जन शुड बी 45 एंड अबव. आप कहेंगे नहीं है तो कुछ चीजें वेबसाइट पे शायद काम नहीं कर पाएंगी. तो इसलिए हम एडवाइस करेंगे कि आप इन वर्जन्स का ध्यान रखें. और दूसरी चीज कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जब आप अटैच करने जाएंगे या रजिस्टर करने जाएंगे तो आपको दिक्कतें महसूस हो सकती हैं. सो इट इज फॉर दैट रीजन दैट वी एडवाइज दैट द ब्राउजर रिक्वायरमेंट शुड बी ड्यूली मेट. What other requirements? हमने बात कर ली प्रोविजनल आईडी एंड पासवर्ड, वो तो हमें लेना ही पड़ेगा वैट डिपार्टमेंट से या किसी और डिपार्टमेंट से. Then we should have a valid email address and the mobile number. क्यों जरूरी है? Let us see. Then we should have the complete details of business, details of principal and additional places of business, details of owners, directors and authorized signatories, details of the bank accounts and the IFSC, photographs of owners, authorized signatories and their details and the necessary scanned documents. तो ये चीजें अगर आपके पास पहले से तैयार होंगी, जैसे कुकरी शो में होता है कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह वो पहले से तैयार कर रखते हैं या कुछ चीजें पहले से बेक करके रखते हैं, तो वैसे ही आपको करना पड़ेगा सो दैट आपका जो आगे का प्रोसेस हो वो आसान हो, सीमलेस हो. So for GST enrollment, first of all we have to create the username and password at the GSTN portal. एंड जब आप सबसे पहले लॉगिन करेंगे तो ये वेलकम स्क्रीन आपके सामने आएगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू एग्री टू द डिटेल्स एज पर प्रोविजंस ऑफ द प्रपोज्ड मॉडल GST एक्ट बिकॉज द लॉ इज स्टिल नॉट फाइनल. सो यू विल हैव टू क्लिक टू दैट एंड यू विल हैव टू क्लिक टू कंटिन्यू. And thereafter, the provisional ID provided by the VAT department or some other department will have to be furnished here. The password will have to be given. And a captcha image, जो ये numbers आपको screen पे दिख रहे हैं वो आपको डालने पड़ेंगे. Then you can click on login. And once you log in, what is the process? First of all, you have to get the provisional ID verified, and then the OTP verification is there, and the new credentials are there, and then the security questions and answers is there. So first of all, mention the email address and the mobile number here, as you can see on the screen. Now you have to provide the correct mobile and email ID. बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हम कहते हैं कि अभी डाल दो, स्टाफ को भी बोलते हैं, कई बार हम खुद भी करते हैं कि अभी डाल दो, बाद में चेंज कर लेंगे. यहां ऐसा करेंगे तो मुश्किल होगी क्योंकि any change or correction will be possible only after the appointed date, which is expected to be 1st of April 2017. तो यहाँ प्लीज प्रोवाइड द करेक्ट ईमेल आईडी एंड द मोबाइल नंबर, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा डिपार्टमेंट की तरफ से वो इन पे ही होगा. एंड ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी किसका देना है? वो आदत तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वही पड़ी हुई है कि अपनी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर देते हैं.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी ओरिजिनली वही दिया गया है, कई प्रॉब्लम्स फेस की गई एसएससीज के द्वारा, तो उसकी वजह से उन्होंने चेंज किया और अब वो प्रोफेशनल का भी लेते हैं और एसएससी का भी लेते हैं। तो यहाँ भी जो आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देना है वो प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ द बिजनेस का देना है, अपना नहीं देना। अब आप कहेंगे हम नहीं देंगे तो हमें कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए भी उन्होंने इंतजाम किया है। उन्होंने कहा है कि आपका एक सेपरेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा जहां से आप लॉगिन कर पाएंगे। सो इसलिए यहां प्लीज ensure that you give the email ID and the mobile number of the primary authorized signatory. Please remember that. Now, there could be multiple authorized signatories. अगर आपके मल्टीपल ऑथोराइज सिग्नेटरीज हैं जो आपके साइन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन या बाकी डॉक्यूमेंट्स को, तो आपको किसी एक को डेजिग्नेट करना पड़ेगा एज द प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी। अब ये कौन होगा? ये बेसिकली उस तरह से होगा जैसे हमारा टीडीएस में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, जो भी टीडीएस रिटर्न्स वगैरह वो अपलोड करता है या साइन करता है, तो वो हम एक पर्सन को डेजिग्नेट कर देते हैं कि ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वही रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप यहाँ कह सकते हैं कि हमारा प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी है। और क्योंकि सारी कम्युनिकेशन चाहे ईमेल से हो चाहे मोबाइल नंबर पे एसएमएस से हो, वो सारी इसी प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी को जाएगी, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसके ईमेल आईडी एंड पासवर्ड दिए जाएं और उसकी कॉपी ऑफ ऑथराइजेशन भी एक बार आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अब ये प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी डिफरेंट केसेस में कौन कौन हो सकता है? प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर या अनदर ऑथराइज पर्सन हो सकता है जिसको प्रोप्राइटर ने ऑथराइज किया हो। पार्टनरशिप के केस में ऑथराइज पार्टनर और ऑथराइज पर्सन। कंपनी, एलएलपी, सोसाइटी, ट्रस्ट एक्सेट्रा के केस में पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड और द गवर्निंग बॉडी। तो इस तरह से हम प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी को डेजिग्नेट कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी एंड मोबाइल ओटीपी हमारे जब हम डाल देंगे तो आ जाएंगे ओटीपी एंड मोबाइल नंबर हमारे एसएमएस पे और ईमेल पे, एंड वी कैन पुट दैट एंड कंटिन्यू। और वंस दैट इज वेरीफाइड, वो पता लग जाएगा कि करेक्ट ईमेल आईडी है और करेक्ट मोबाइल नंबर है, उसके बाद आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा। ये एक नया यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ देना पड़ेगा, रिकन्फर्म करना पड़ेगा। हियर दे कुड हैव मेड इट मैंडेटरी कि आपको जो प्रोविजनल आईडी मिला है वो आपका यूजर नेम हो, दैट वुड हैव बीन बेटर, बट ऐसा नहीं किया गया। अभी आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ फेस कर सकते हैं। बाद में आपको याद ही नहीं होगा कि आपने किसके के लिए कौन सा यूजर नेम डाला है। आपने वेबटेल 110 डाला है तो वो दिल्ली का है या मुंबई का है, आपको शायद याद ही नहीं रहेगा बाद में। तो इट वुड हैव बीन बेटर अगर वो प्रोविजनल आईडी को ही यूजर नेम बना देते, बट दे हैव नॉट डन दैट, सो लेट अस एक्सेप्ट दैट। And once you put in the password also, reconfirm the password also. और यहाँ username password के लिए भी limitations हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। Both can be of 8 to 15 characters. पासवर्ड के केस में एक ही लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेसिफाइड कैरेक्टर होना चाहिए और बाकी कुछ भी कैरेक्टर, नंबर्स, अल्फाबेट्स वगैरह हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स यूजर आईडी में जो अलाउड हैं सिर्फ डॉट, अंडरस्कोर और हाइफन है, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। And once the password is being sent on and the OTP is accepted, अगर OTP आपको टाइम पे नहीं मिलता, तो अगर 15 मिनट्स के अंदर नहीं मिलता तो रीसेंड OTP का बटन है, उसको आप यूज कर सकते हैं। या अगर फिर भी नहीं आता तो इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए, मोबाइल आईडी एंड ईमेल आईडी चेक करिए, वो हो सकता है आपने गलत डाल दिया हो। वंस दैट प्रोसेस इज कंप्लीट, देन हमारे पास आगे सिक्योरिटी क्वेश्चंस आएंगे। Date of birth of the proprietor, mother's name of the proprietor, main commodity or service, name of the first employee, and the personal mobile number of the proprietor, etc. ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने ही पड़ेंगे। ये आपको हेल्प करेंगे अगर आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह भूल जाएंगे। इन दैट केस these सिक्योरिटी क्वेश्चंस विल हेल्प यू। सो प्रॉपरली इनका आंसर करिए ताकि बाद में आपको इस केस में दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एंड देन वंस दिस प्रोसेस इज फाइनल, तो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड ओके हो जाएगा और उसी को यूज करके आप लॉग इन कर पाएंगे जीएसटीएन पोर्टल पे। ये आपका वेलकम स्क्रीन है। राइट हैंड साइड पे आपको आपके एसएससी का नाम या कंपनी का नाम नजर आएगा जो आप देख सकते हैं। एंड यू कैन प्रोसीड। डैशबोर्ड पे क्लिक करके आप माई एप्लीकेशन स्टेटस देखेंगे तो वहां इनिशियली प्रोविजनल आएगा, तो उसको आप एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे आप क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं।
अब ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस हो सकते हैं, प्रोविजनल हो सकता है, प्रोविजनल पेंडिंग सिग्नेचर हो सकता है, माइग्रेटेड हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, फाइनल हो सकता है एंड सस्पेंडेड हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे ये स्टेटस होंगे, तो आप चेक करके आप पता लगा सकते हैं कि अभी क्या स्टेटस है रजिस्ट्रेशन का। Now thereafter we have to start putting the details one by one of the different tabs that are there on the GSTN portal. First is the business details, second is the authorized signatory, third is the promoter or the partner details, and the fourth is the principal place of business. Then we have additional places of business, if any, details of goods and services, details of bank accounts, and finally verification. One by one we have to fill these tabs. First of all, we have to fill the business details. That is the most important. Others you can fill probably the authorized signatory first or the principal place of business first, doesn't matter, but you have to start with the business details first. And please ensure that all the mandatory information which is marked with the red dots must be filled in one go, and even the documents. So if for example we are talking about the director details, if you fill in the director details, all the mandatory director details जहाँ भी red asterisk marks हैं वहाँ आपको अभी डालनी पड़ेगी डिटेल, और उससे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अगर कोई है, जैसे फोटोग्राफ है या उसका अपॉइंटमेंट की डिटेल्स डालनी है, तो वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डालनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज आप इसको सेव नहीं कर पाएंगे। कुछ ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है, जैसे सेकंड नेम है या लास्ट नेम है ऑफ द डायरेक्टर या उसके फादर्स नेम है सेकंड या थर्ड, वो मैंडेटरी नहीं है, वो बाद में भी आप डाल सकते हैं, या फोन नंबर आप बाद में डालना चाहते हैं बाद में डाल सकते हैं, लेकिन ये जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक ही बार में आप डाल सकते हैं, उसी के बाद आप प्रोसीड कर पाएंगे। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट, अदरवाइज आप जितना भी डेटा डालेंगे वो सेव नहीं हो पाएगा। यहाँ कुछ टिप्स हैं कि अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो वो ड्रॉप डाउन है, उनका यूज करिए। अगर मल्टीपल आइटम्स हैं, जैसे आपके 5-6 बैंक्स हैं, तो आप एक के बाद एक फिल कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। शो लिस्ट का ऑप्शन है, जहां से आप देख के चेक कर सकते हैं कौन कौन से आप ऑलरेडी फीड कर चुके हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट करना है तो वहां आपको चूज करनी पड़ेगी रेलेवेंट फाइल। कहीं पिछले टैब में जाना चाहते हैं तो गो बैक यूज कर सकते हैं। सिंपल चीजें हैं, बट थोड़ा सा फिर भी आपको बता रहा हूं। इंटरनेट कनेक्शन बीच में आप लूज कर सकते हैं, तो उस केस में आपको डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा, माई सेव्ड एप्लीकेशन मेन्यू में जाना पड़ेगा, एंड यू कैन क्लिक ऑन द एडिट बटन टू सेव द सेव्ड एनरोलमेंट फॉर्म। और अगर ज्यादा टाइम आपकी इनएक्टिविटी रहती है, तो जैसे सिक्योर्ड साइट्स बैंक्स वगैरह की होती हैं, तो आपका सेशन लॉग आउट हो जाएगा। और ऑल्सो अगर आप में से 2 लोगों को पता है कि इस एसएससी का कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड है, तो अगर एक ने लॉगिन कर रखा है, दूसरा लॉगिन करेगा, तो वो लॉग आउट हो जाएगा। तो एक ही आदमी एक बार में लॉगिन कर सकता है। कमिंग टू द फर्स्ट डिटेल्स इज द बिजनेस डिटेल्स। यहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ आपको एप्लीकेशन टाइप, प्रोविजनल आईडी एंड लास्ट मॉडिफाइड दिखाई देगा। प्रोफाइल आपकी कितनी % कंप्लीट है, दैट यू कैन चेक। तो उस तरह से आप चेक करके और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे डिटेल्स ऑफ द बिजनेस यू कैन सी, सम ऑफ द फील्ड्स विल बी प्री फिल्ड, वहां आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ये कौन सी फील्ड्स है? पैन ऑफ द बिजनेस, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एंड द स्टेट। तो अगर आप दिल्ली का रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं और वहां महाराष्ट्र चेंज करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाएंगे, तो ये फील्ड्स चेंज नहीं हो पाएंगी। ईमेल एड्रेस ऑफ द प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी एंड मोबाइल नंबर ऑफ दिस पर्सन विल बी able to be changed after the appointed date. Once GST comes into play, once it becomes effective, thereafter you will be able to change these. इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये ध्यान से डालिए, ये आप अभी कुछ टाइम तक चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जो आप ये ग्रे बॉक्सेस देख रहे हैं, ये आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज पर पैन है, लीगल नेम एज पर द करंट एक्ट है, पैन ऑफ द बिजनेस है, स्टेट है, वार्ड है, दैट यू कैन नॉट चेंज। बाकी जो आप रेड वाले देख रहे हैं बॉक्सेस, वो मैंडेटरी फील्ड्स हैं एंड यू मस्ट फिल देम। सो ट्रेड नेम ऑफ द बिजनेस, आपकी कोई शॉप है, शॉप का कोई नाम है, साड़ी शॉप है तो उसका कोई नाम है, तो वो आप डाल दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, वेदर इट इज प्राइवेट लिमिटेड, public limited, sole proprietorship, that you have to select here from the drop down. Then the ward, circle, sector, etc. that you have to select, and that is mandatory. तो इस तरह से आप ये select कर सकते हैं and then we can proceed.
Then we have to give all the details of the existing registrations of the business. इसमें जितने भी आपके indirect tax registrations हैं, या आपका company law का registration है, या आपका LLP का registration है, वो सब आपको details देनी पड़ेंगी. तकरीबन 11 registrations हैं, which includes the entry tax, which includes the state VAT, which includes CST, which includes importer exporter code number. तो जो भी relevant है आपके, आप उनको select करके उनकी आपको क्या क्या details देनी है, registration number and the date of registration. So please provide that. This is complete. Next we can move on to the promoter and the partner details. Again, जो red boxes हैं, these are mandatory fields. These must be filled. And once we have done that, then we have to move on to the identity information, the designation, the PAN number. And अभी यहाँ अब जब आप डालेंगे पैन नंबर, पैन का अगर स्ट्रक्चर करेक्ट है तो वो कोई चेक नहीं करेगा कि ये पैन डेटाबेस में है या नहीं, लेकिन जब आप अपलोड करने जाएंगे तो वहां ये चेक किया जाएगा. सो प्लीज पुट इन द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. रेजिडेंशियल एड्रेस देना है आपको प्रोमोटर्स पार्टनर्स का, सोल प्रोप्राइटर एक्सेट्रा. एंड यहाँ डिस्ट्रिक्ट बतानी पड़ेगी. लाइक दिल्ली की बात करें तो दिल्ली हैज बीन डिवाइडेड इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स, तो वो ड्रॉप डाउन आएगा, उसमें से रेलेवेंट जो आपको सिलेक्ट करना है. अब ये सब चीजें तो आपको पहले पता होना चाहिए ना. जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो इस तरह की नई नई चीजें अगर आपके सामने आएंगी तो आपको ये एक एडिशनल काम हो जाएगा. तो अब आप जिसका भी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी साइट पे. देन इस तरह से आप इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं. एंड यहाँ फोटोग्राफ भी प्रमोटर पार्टनर एक्सेट्रा की आपको अपलोड करनी पड़ेगी. यहाँ आपका सिर्फ JPEG फॉर्मेट अलाउड है एंड डॉक्यूमेंट साइज इज ओनली 100 KB. सो फोटोग्राफ का प्लीज ध्यान रखिए कि 100 KB तक ही अलाउड है. और अगर आप सेल्फी लेना चाहते हैं तो जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसे सेल्फी लेके अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन डिपार्टमेंट ने आपको दिया है. एंड देयर इज अ डिक्लेरेशन ऑल्सो, नॉर्मल रूटीन डिक्लेरेशन है. अगर आप आधार नंबर अपना डालते हैं तो वो कहते हैं अगर हम आधार आपका यूज करेंगे तो वो आइडेंटिटी के पर्पस के लिए और किसी पर्पस के लिए नहीं है, तो वो आप अपनी कंसेंट दे रहे हैं. सो दैट काइंड ऑफ डिक्लेरेशन इज देयर. जैसे पार्टनर्स या प्रोप्राइटर्स वगैरह की बात करें उसी तरह से ऑथोराइज सिग्नेटरीज की डिटेल आप डाल सकते हैं. वेरी सिमिलर प्रोसेस उसी तरह से. एंड आधार नंबर मस्ट है अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं ई-साइन के लिए. आई टेल यू मोर अबाउट दिस लेटर ऑन. प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी, जो कॉपी ऑफ ऑथराइजेशन लेटर है या कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन है वो अटैच करनी पड़ेगी, आपको अपलोड करनी पड़ेगी. एंड दिस डिक्लेरेशन फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी शुड बी सेपरेट फॉर ईच सिग्नेटरी. सबका एक साथ आप बना के नहीं डाल सकते. फॉर्मेट यहाँ अलाउड है PDF और JPEG. साइज डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स का डिफरेंट साइज है, आप प्लीज चेक कर लीजिए. मैक्सिमम साइज परमिटेड इज 1 MB. तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स का डिफरेंट साइज वो अलाउ कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा होगा तो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे. Then there is an acceptance as an authorized signatory, वो आपको भी अपलोड करना पड़ेगा स्कैन डॉक्यूमेंट का, या SD करके आप साइन करके कर सकते हैं. What about if the director and the authorized signatory is the same? In the smaller companies, probably the director and the authorized signatory will be the same. In that case, you have to do this process twice. That is, for director, the punching will be there, and for the same person, the punching of the details, the PAN number, etc., will be as authorized signatory also. Coming to the principal place of business, you have to give the details of the principal place of business. Basically, it is the primary location in the state where business is performed. Now, which is a primary principal place of business? Sometimes doubts might arise. So, it could be the place where the books of account are maintained, or a place where the top management is generally located. It could be that place. The details of the address, etc., all these details have to be given. Then the nature of possession of premise sorry, nature of possession of premises, whether it is leased, whether it is owned, etc., is to be given. Then the document, whether it is a rent agreement, etc., that is to be uploaded here also. And the nature of business activity, whether it is a shop, whether it is an office, whether it is a manufacturing hub, all these have to be selected. And multiple selection is allowed. So you can use multiple selection. Your place may also be office, your place may be also the manufacturing, it may also be the warehouse. Multiple selection is allowed, but there is no option of others. तो अगर आपका इन सब में फॉल नहीं करता तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है. Just as principal place of business, अगर कोई additional place of business है आपका उसी स्टेट में, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ देनी पड़ेगी. सेम प्रोसेस है, सेम फील्ड्स हैं, आप देख सकते हैं.
एंड वंस यू पुट इन दीज, तो मल्टीपल अगर आपकी हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं जो आपने डाली हैं, दे विल बी विजिबल ऑन द स्क्रीन. कमिंग टू द गुड्स एंड सर्विसेज, you have to give the details of the top 5 goods and services. अगर आपकी हैं दो तो 2 दे दीजिए, 3 है तो 3 दे दीजिए, लेकिन अगर आपकी मल्टीपल है, ज्यादा है, तो टॉप 5 गुड्स की एंड टॉप 5 सर्विसेज की डिटेल्स आपको देनी है. और यहाँ आप सर्च कर सकते हैं HSN चैप्टर बाय द नेम और द कोड. तो आप नेम डाल सकते हैं या 4 डिजिट कोड डाल सकते हैं और उसके बाद HSN कोड 8 डिजिट का डालना पड़ेगा. तो इस तरह से आप सिलेक्ट करके डाल सकते हैं. जैसे हम अगर स्टील डालेंगे तो स्टील से रिलेटेड सारे आ जाएंगे, तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं. और HSN कोड नेट पे भी आप सर्च करके, जैसे आपको पता है तो आप डाल दीजिए इस तरह से. और जब हम कोड डालेंगे, जैसे 8523 डाला तो उससे रिलेटेड आइटम्स आ जाएंगे. अपना रेलेवेंट सेलेक्ट कर लीजिए और HSN कोड भी हम जो रेलेवेंट है वो डाल के इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं. एक के बाद एक सिलेक्शन ऐसे मल्टीपल हो सकता है यहाँ पे. कमिंग टू सर्विसेज, इसी तरह से सर्विसेज का, अब सर्विसेज के कोड जो है वो जो सर्विस टैक्स में थे वही वाले कोड्स हैं. तो उस तरह से या तो आप ऑनलाइन लिख के स्टार्ट कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोड है तो ये वाला कोड डाल दीजिए तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. और आपके मल्टीपल आइटम्स हैं तो व्यू ऑल का ऑप्शन है जिसको आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं जो भी आइटम्स हैं, इन रेलेवेंट को टिक कर सकते हैं. इस तरह से रेलेवेंट जो होंगे आपके बाद में स्क्रीन पे नजर आएंगे सिलेक्ट होके. Then coming to the बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स आपको अपने सभी बैंक अकाउंट्स की देनी है. लेकिन अगर आपके बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं तो अगर 10 से ज्यादा है तो मैक्सिमम 10 अकाउंट्स की यहाँ देनी है. इस तरह से स्क्रीन पे नजर आएगा. आपको अकाउंट नंबर डालना है, टाइप ऑफ अकाउंट डालना है, विच कुड बी कैश, क्रेडिट, करंट, सेविंग्स एंड अदर्स, एंड IFSC आपको एंटर करना है. और यहाँ आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, द बैंक स्टेटमेंट और द फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक कंटेनिंग द अकाउंट नंबर, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, MICR, IFSC एंड द ब्रांच डिटेल्स. तो ये आपको करनी है. यहाँ 500 के भी अलाउड है, आपको उससे ज्यादा आपका डॉक्यूमेंट साइज हुआ तो एक्सेप्ट नहीं होगा. एंड ये बैंक अकाउंट्स इस तरह से आप सर्च भी कर सकते हैं, फैसिलिटी है, आप सर्च का ऑप्शन यूज करके भी आप बैंक अकाउंट्स डाल सकते हैं. तो मल्टीपल है तो इस तरह से आप कंप्लीट करके डाल सकते हैं. लेट्स से देयर आर 3 बैंक अकाउंट्स, तो इस तरह से वो बाद में स्क्रीन पे आपको साइट पे नजर आएंगे. Finally, we come to verification. Once everything has been completed, then we have to verify that this data is complete. We have to validate the data. Authentication has to be completed. And here it is necessary that the authorized signatory has already been populated. आपने already उसकी जो details है वो वहाँ डाल रखी हो, तो आप क्लिक करके select कर सकते हैं. Place आपको डालना पड़ेगा. एंड देन जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, हमने क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया जो हमारा ऑथोराइज सिग्नेटरी है जो वेरीफाइड डेटा को करेगा. देन देयर आर 3 ऑप्शंस, सबमिट विद DSC, सबमिट विद ई-सिग्नेचर एंड सबमिट. सबमिट विद DSC कंपनीज के केस में एंड LLPs के केस में मैंडेटरी है. बाकी केसेस में आप ई-सिग्नेचर भी यूज कर सकते हैं. एंड अगर आप अभी डेटा कंप्लीट नहीं है, लेट्स से अगर आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने डेटा फीड किया है और आपको चेक करना है और वाइस वर्सा, उस केस में आप सिर्फ सबमिट क्लिक कर दीजिए तो वो डेटा सेव हो जाएगा, वो फाइनल नहीं होगा. एंड इस तरह से एक वेरिफिकेशन है, ये भी है कि ये डेटा करेक्ट है, ट्रू है एंड नथिंग हैज बीन कंसील्ड देयर फ्रॉम. तो वो ध्यान रखिए. और ये इसमें आपको ये भी कह रहे हैं कि ये डेटा है वो सब चेक किया जाएगा जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और गलत हुआ तो इवन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है. सो लेट अस ऑल बी वेरी केयरफुल. So once we click on submit, the data will be successfully submitted and a unique reference number will be generated which should be noted for future reference. और सक्सेस का इस तरह से मैसेज आ जाएगा. And then we can check the application status from time to time. It will change as I told you earlier. Now type of documents, different type of documents could be there. बीच में भी हमने देखा या कुछ और हो सकते हैं. ओनरशिप का प्रूफ है या पार्टनरशिप का प्रूफ की पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है या बैंक की क्या स्टेटमेंट है, इस तरह के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं. फोटोग्राफ्स के केस में एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाइए क्योंकि साइज इसमें 100 KB ही अलाउड है. यहाँ ध्यान रखिए JPG फॉर्मेट ही अलाउड है. और पार्टनर्स की, प्रोप्राइटर्स की या जो आपके एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, तो वहां आपको जो डिटेल्स देनी है वो सब पार्टनर्स की, सब मेंबर्स की देनी है. लेकिन अगर 10 से ज्यादा है तो फोटोग्राफ सिर्फ 10 की देनी है. इस बात का ध्यान रखिए.
प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टनरशिप डीड आप दे सकते हैं पार्टनरशिप के केस में, बाकी केसेस में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या जो भी प्रूफ है वो आप दे सकते हैं। देन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वगैरह के केस में रेंट एग्रीमेंट वगैरह उस तरह से पहले जैसे बताया था वो आप दे सकते हैं। कमिंग टू डिजिटल साइनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज टू बी साइंड डिजिटली। Now, in the case of companies and LLP, it is mandatory to use digital signature. वैसे भी जनरली इन केसेस में डिजिटल सिग्नेचर है क्योंकि आप इनकम टैक्स रिटर्न्स भी इन्हीं से अपलोड करते हैं। बाकी केसेस में ई साइन विल बी अलाउड, और ई साइन के केस में मैंडेटरी है कि जो आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है उसकी आधार डिटेल्स आपने जरूरी डाली होगा। तो डीएससी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अगर आप कहेंगे तो सिंपल प्रोसेस है। साइट पे जाके आपको डिटेल्स देनी है और उसका वैलिडेशन होगा कि ये करेक्ट है या नहीं, इट शुड नॉट बी एक्सपायर्ड और रिवोक्ड। और उससे पहले एक सॉफ्टवेयर भी आपको डाउनलोड करने की जरूरत है विच इज द डीएससी क्लाइंट इंस्टॉलर। ये आपको जीएसटी की कॉमन पोर्टल पे मिलेगा और उसके बाद अटैच करना है हार्डवेयर टोकन को। तो क्या इस तरह से आप जो डॉक्यूमेंट साइनर इंस्टॉलर है, जो मैं कह रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर चाहिए आपको डीएससी साइन करने के लिए, डीएससी से साइन करने के लिए, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे। और जनरली हम विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज वाला ऑप्शन हम क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और जब आप रजिस्टर करने जाएंगे डीएससी को तो वहाँ ऑथोराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट कर लीजिए और वहां आएगा ऑप्शन, अगर आपने अभी तक ये डॉक्यूमेंट साइनर इंस्टॉल नहीं किया होगा तो वहाँ ऑप्शन विल कम क्लिक हियर टू डाउनलोड द डॉक्यूमेंट साइनर। तो अगर अभी तक नहीं किया था तो यहाँ से क्लिक कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद दोबारा आके यहाँ दोबारा से आप ऑथोराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करके एंड यहाँ क्लिक करके प्रोसीड करिए। डीएससी आप इस तरह से सेलेक्ट करके रजिस्टर कर सकते हैं। The message will come, the DSC has been successfully registered, and then you can view or update the DSC details also. The DSC details can be visible like this. Later on, if you want to change the DSC, you can also update the DSC. In the case of e-sign, as I said, Aadhaar number of the other authorized signatory is mandatory because the OTP will be sent to the registered email address or the mobile number. And once that is done, the e-sign process will be complete. Very simple. जैसे आप e-sign यूज करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स की फाइलिंग के लिए, वही प्रोसेस यहाँ भी उन्होंने ले आए हैं and that you can use. Who all can sign? Now, generally in the case of signing, these people are the authorized persons. In the case of a proprietorship, the proprietor; in the case of partnership, the managing or the authorized partner; in the case of HUF, the karta; in the case of companies, managing director, whole-time director or the key managerial personnel, etc. बट इस केस में थोड़ा ध्यान रखिए, जो लास्ट कॉलम है वो बताता है कि कौन साइन कर सकता है। तो कुछ केसेस में आप देख सकते हैं डीएससी मैंडेटरी है, उन केसेस में उन लोगों को ही साइन करना चाहिए। बाकी केसेस में ई सिग्नेचर का यूज किया जा सकता है फॉर साइनिंग द एनरोलमेंट एप्लीकेशन एंड फॉर साइनिंग द अदर डॉक्यूमेंट्स। बाद में जो रिटर्न्स वगैरह आएंगी या कुछ और फॉर्म्स आएंगे, दीज कैन बी यूज्ड। And the enrollment application can be rejected if the data is not correct, it is incorrect, if fake documents have been uploaded, so please be careful. But the department will give a reasonable opportunity of being heard to you. ऐसा नहीं कि वो एकदम से रिजेक्ट ही कर देंगे, आपसे एक बार पहले बातचीत होगी इस बारे में। अब रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स या चेंजेस या ऑल्टरेशंस, they will be allowed from the appointed date onwards. And ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें कब मिलेगा? इट विल बी अवेलेबल ऑनलाइन ऑन द डैशबोर्ड। कोई फिजिकल आपको नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन आपके डैशबोर्ड पे ही मिल जाएगा एंड दैट विल बी अवेलेबल ऑन द अपॉइंटेड डेट once the enrollment application has been filed correctly and completely. And the final registration certificate that we will get after verification of the documents, and this will happen within 6 months from the appointed date. So this was the complete enrollment process, the migration process in brief or in some detail if you may say so. अब इसमें कई पेन पॉइंट्स हैं, कई दिक्कतें हैं। फॉरगेट यूजर नेम पासवर्ड वगैरह के तो नॉर्मल जो तरीके हैं उससे आप देख ही सकते हैं, नॉट अ मेजर इशू। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कई प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स, जो आपको जैसे फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है,
फोटोग्राफ्स अपलोड करने के केस में 100 KB ही सिर्फ अलाउड है, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपका फोटोग्राफ का साइन है, आप कहेंगे कोई बात नहीं, हम तो अपने एसएससीज का रजिस्ट्रेशन कर देंगे, जनरली हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, और जनरली फोटोग्राफ्स भी हैं क्योंकि बाकी जगह भी एमसीए में जरूरत थी, इनकम टैक्स में हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो वी हैव दो स्कैन डॉक्यूमेंट्स। वो होंगे, लेकिन क्या उनके साइज 100 KB हैं? अगर उससे ज्यादा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपके पास जरूरी सॉफ्टवेयर तो होगा जिससे आप साइज रिड्यूस कर पाए। नहीं है तो ये आपके लिए एक दिक्कत का मुद्दा है। आपको अपने एसएससी को बोलना पड़ेगा कि जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोप्राइटर्स हैं, जो ऑथोराइज सिग्नेटरीज हैं, उनके आप स्कैन्ड फोटोग्राफ्स दीजिए जेपीजी फॉर्मेट में ही, और साइज 100 KB होना चाहिए। अब दैट कुड बी एन इशू। उसके अलावा आप जब लॉगिन करते हैं, आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, या हो सकता है आपका क्लाइंट भी काम कर रहा हो, जीएसटीएन पोर्टल पे आप भी काम कर रहे हैं, तो आप में से जब भी कोई एक लॉगिन करता है और दूसरा उसके बाद लॉगिन करता है, तो वो दूसरा लॉग आउट कर जाएगा, क्योंकि मल्टीपल लॉगिन्स यहाँ अलाउड नहीं है। तीसरी चीज मैंने बताई कि बहुत सारी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, और जब भी आप इंफॉर्मेशन सेव करेंगे तो आपको वो फिल करनी मैंडेटरी है। जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है मैंडेटरी, वो भी अपलोड करने मैंडेटरी हैं, उसी के बाद आप प्रोसीड कर पाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से ये प्रोसेस इतना सीमलेस नहीं है, इतना इजी नहीं है, और ये करेक्ट भी हो। आप में से कुछ सोचेंगे कि हमने तो अपलोड ऑलरेडी कर दिया, हमने तो अपने क्लाइंट का माइग्रेशन का प्रोसेस कर दिया। इज दैट करेक्ट? या किसी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है? डेफिनेटली है। आप एसएससी अगर कर रहे हैं तो उसमें आप कुछ गलतियां कर सकते हैं, बाद में रिजेक्ट तक हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन में भी कॉल फ्रॉम द डिपार्टमेंट। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट अ प्रोफेशनल पर्सन डज दिस वर्क, एंड इवन द प्रोफेशनल डज दिस वर्क वेरी केयरफुली, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं आपसे यहां कहूं कि अगर आपका एक पोर्टल बना दिया जाए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, जीएसटी एनरोलमेंट के लिए, जीएसटी माइग्रेशन के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए, तो कैसा लगेगा? मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा। और अच्छा ही नहीं लगेगा, ये एक आपके लिए बहुत बड़ी ब्रांडिंग एक्सरसाइज होगी। व्हाई? बिकॉज नाउ यू कैन टेल योर क्लाइंट कि आपको जीएसटीएन पोर्टल पे जाके रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, या हम आपका वहां से नहीं करेंगे, हमने आपके लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है जहां से हम आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे। और ना सिर्फ आप अपने सिस्टम पे बैठ के दे सकते हैं, आप अपने क्लाइंट को भी कह सकते हैं वहां जाके आप चेक करिए। जैसे हम एग्जांपल के लिए यहाँ CARajiv.com पे जाएंगे, और यहां हम क्लिक करके we'll go here, we'll click to GSTN login, and here we will get the list of clients for which we are doing the migration or registration. So the very fact that this is being done at your website, at your portal, will take you several notches above the reputation that you presently enjoy. So I think very important, leave aside the other advantages that we'll just now see. This is indeed the biggest advantage, the branding of yourself, of your services, of your brand. So let us start, and I've already done for a few of the clients, and let us see one of the clients that I've done. We'll click on edit button. It has logged me out, and let me log in again. The list of clients will come, and I can, और यहाँ आपको हर क्लाइंट के लिए अलग अलग लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा, मैंने यूजर आईडी पासवर्ड एक ही बार डाला, उससे मैंने एक्सेस करके मेरा सब क्लाइंट्स का खुल गया। तो हर क्लाइंट के लिए अलग अलग लॉगिन और पासवर्ड बनाने की और याद करने की अलग जरूरत है, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं है। सो आई विल क्लिक ऑन द एडिट बटन, और ये हमारी सारी डिटेल्स आ गई जो हमने भरी हुई है यहाँ। सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिल द ऐड क्लाइंट बटन है, वहां से मुझे आई विल स्टार्ट फिलिंग दीज डिटेल्स। तो यहां से मैं स्टार्ट कर सकता हूं, ऑलरेडी जो मैंने किया हुआ है पहले हम देख लेते हैं, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन फिलिंग दिस इंफॉर्मेशन। नाउ टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, सो क्लिक ऑन एडिट बटन। नाउ लेट अस सी व्हाट द डिटेल्स वी हैव फिल्ड। ऑल दीज डिटेल्स आर कमिंग हियर दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन।
these details have to be filled, या जो registrations हैं वो हमने already registration कर लिया, जो relevant documents हैं वो upload कर दिए. उसी तरह से ये principal place of business, we have filled these details. और जितनी इंफॉर्मेशन आपको भरनी है भर दीजिए, जो डॉक्यूमेंट है वो डाल दीजिए, जो नहीं है वो बाद में आ जाएगा. तो ये एक कन्वीनियंस है यहाँ का. उसी तरह से एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आप सिलेक्ट करके डाल सकते हैं. यहाँ अगर आपकी कोई है तो, अभी मैंने नहीं डाला, यहाँ कोई नहीं है. देन द गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड, ये आपके हमने ऑलरेडी यहाँ डाल रखे हैं, ये अपीयर हो रहे हैं. सिंपल प्रोसेस है सिलेक्ट करने का. देन द बैंक अकाउंट्स, ये बेसिकली आपके कंट्रोल में है, ये कहीं बाहर दूसरे के पोर्टल पे ना जाके, ये आप आपके पोर्टल पे ही हो रहा है. तो ये सब चीजें आपके कंट्रोल में है. तो यहाँ बैंक अकाउंट्स ऑलरेडी हैव बीन फिल्ड, सो आई कैन सी व्हाट आर दीज. ये ऑलरेडी हमारे को यहाँ नजर आ रहे हैं, ये हमने फिल कर रखे हैं. या मैं क्लिक करके चेक कर सकता हूँ कौन सा डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया था. तो ये डॉक्यूमेंट भी मुझे यहाँ नजर आएगा कि बाद में मैं चेक करना चाहता हूँ तो द डॉक्यूमेंट विल बी अवेलेबल टू मी. तो इस तरह से हम डाल सकते हैं, बाद में चेक कर सकते हैं प्रोप्राइटर पार्टनर्स की डिटेल्स. Here I can fill like this, and then once that has been done, I can check. I or my client can check. इस तरह से यहाँ जो भी आपने डाल रखे होंगे वो विजिबल होंगे, and that you can put information into. या आप चेक करना चाहते हैं तो आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ आपकी ये सब इंफॉर्मेशन आएगी. ये क्लिक करने पे आ गया, लेकिन जब जीएसटीएन के पोर्टल पे आप चेक करेंगे तो वहां फोटो विजिबल नहीं होगी जब तक कि आप. तो ये अगेन प्रॉब्लम है. अगर ए की जगह बी की फोटोग्राफ आपने लगा दी और बी की जगह ए की लगा दी तो ये इट विल बी लाइक सबमिशन ऑफ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन. तो ऐसा ना हो तो यहाँ हमने ऑप्शन आपको दिया है कि आप ये चेक कर सकते हैं. सिमिलरली फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी यू कैन फिल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. Here you can click, और यहाँ आपके जो भी डायरेक्टर्स हैं वो आ जाएंगे और आपको दोबारा से ऑथराइज सिग्नेटरी की, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी की इंफॉर्मेशन फिलअप करने की जरूरत नहीं है. आप एडिट करके यहाँ से whether he is primary authorized signatory or not आप क्लिक कर सकते हैं. तो जो आपने ऑलरेडी डायरेक्टर या पार्टनर या प्रोप्राइटर को बना रखा है उसी से आपका प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी बन जाएगा. आपको दोबारा से ये डिटेल्स, क्योंकि ये सब रेपिटेशन है, तो अगर आप इस पोर्टल के थ्रू, अपने पोर्टल के थ्रू ये काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ काम कम करना पड़ेगा. Coming to the final step, which is verification. Here you can click on verify. You can select the authorized signatory. आप दोनों में से जो भी आपके रिलेवेंट हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं. प्लेस डाल सकते हैं, डेजिग्नेशन डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं और इसको सेव या वैलिडेट डेटा. लेट अस वैलिडेट द डेटा. अब ये बताएगा कि क्या क्या चीजें आपकी पेंडिंग रह गई हैं अभी. तो एक सिंगल स्क्रीन पे आपको पता लग जाएगा, गलतियां नहीं होंगी और यहीं से आप क्लिक करके नेविगेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे और यहाँ जो चेंजेस आपको करने हैं दैट यू कैन डू. सो वेरी सिंपल. और जैसे मैंने बताया इट्स अ वेरी बिग ब्रांडिंग एक्सरसाइज फॉर अस. और ऐड क्लाइंट से कर सकते हैं और बाकी आपको डैशबोर्ड में सारे क्लाइंट्स आपको एक साथ नजर आएंगे. यहाँ पे एक का कर लिया, दूसरे का पे जाके कर सकते हैं. दैट यू कैन डू. Now, what is this GST impact calculator? Now we also have this facility whereby, now how many of you have done impact analysis of your clients? For everyone has done? For each of his clients? Why I'm asking that? Because do you not need to assess for each client what is the impact of GST on his business? छोटे से छोटे बिजनेस से लेके बड़े से बड़े बिजनेस के लिए ये इम्पैक्ट एनालिसिस करना जरूरी है. मैं तो कहूंगा मैंडेटरी है. उसको एक गोडाउन रखना है या मल्टीपल गोडाउन रखने हैं, एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना है या मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन करना है, उसके जो इनपुट्स आ रहे हैं वो क्या चीपर हो जाएंगे, तो वो क्या उसको उससे कहना चाहिए सप्लायर से कि भाई पैसे कम कर. जो सप्लायर्स हैं उनको असेस करने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि कल को वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो मेरे को तो इनपुट क्रेडिट मिलेगा ही नहीं मिलेगा. सो मेनी थिंग्स. लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट्स हैं वो कम होने जा रही हैं. एक्सपेक्टेड है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, तो क्या आपने ट्रांसपोर्टर के साथ नेगोशिएट करना शुरू कर दिया अभी से? Who will do all this? You as chartered accountants have to do. And those businessmen who are listening,
who are accessing this webcast, they need to contact their chartered accountants, their professionals. उन्हें पूछने की जरूरत है, ये this is high time. अभी नहीं करेंगे तो it will be too late. तो एक बेसिक जो इम्पैक्ट एनालिसिस आप चेक करेंगे, लेट अस सी अभी यहाँ अवेलेबल है या नहीं है ये अवेलेबल. तो यहाँ आप फिगर्स फीड करके इम्पैक्ट एनालिसिस का आप बेसिक एक इम्पैक्ट चेक कर सकते हैं कि आपके बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा इसका. सो ये भी फैसिलिटी आपको इस पोर्टल पे अवेलेबल होगी. सो आई थिंक काफी कुछ मैंने माइग्रेशन के ऊपर, एनरोलमेंट के ऊपर, या जो पुराने रजिस्ट्रेशन है जो दोबारा यहाँ से कन्वर्ट होने हैं जीएसटी में, उसके बारे में आई हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट. नाउ टाइम इज दैट वी विल ब्रेक फॉर अ शॉर्ट व्हाइल एंड देन come again, and you can in the meantime post your queries and I'll definitely try and answer them. जितने भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो जनरल टाइप की क्वेरीज होंगी, वो डेफिनेटली हम अभी आंसर करने की कोशिश करेंगे. अगर कुछ रह जाती हैं तो डेफिनेटली प्लीज गिव योर ईमेल आईडीज आल्सो. वील ट्राई एंड रिप्लाई बैक ऑन दोज ईमेल आईडीज, या उनका एक समरी बना के एफएक्यूज टाइप के भी हम पोस्ट कर सकते हैं, विच विल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. So please wait for a short while. I'll come back again. Thank you. Check kara lo. So welcome back. And in the meantime, I've received many queries and I'll try and answer to some of them. One query is that the authorization is to be given for the authorized signatory on plain letter or on letterhead. So obviously it is to be on a letterhead, duly signed, etc. And then the scanned copy of the same is to be uploaded there, right? Then somebody has asked me who are the authorities or what are the returns to be filed, since time is short. And presently we're talking only about migration or enrollment, so that is why we will not go in those details. In future we'll be doing more seminars, physical seminars also, webinars also, and definitely about the authorities, about the returns, about the transitional provisions, other important things we and the other speakers will be definitely be talking about. Then somebody has asked that what about filing of returns by the new entity? अभी आपको इतनी जल्दी क्यों है? अभी लॉ तो फाइनल हो जाने दीजिए. माइग्रेशन तो अभी करना पड़ेगा आपको, लेकिन एक बार लॉ पास हो जाता है उसके बाद ही तो रिटर्न्स आप फाइलिंग करनी चालू करेंगे. तो अभी रिटर्न्स के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए. आई थिंक आप काफी कोशिश कर रहे हैं वो करने की, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा. लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा रिटर्न्स क्या हैं, कैसे हैं. एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज रिटर्न अब पहले की तरह की नहीं होंगी. A lot of detailed information will be going into the return. If an invoice has 1000 entries, each of those 1000 entries will have to be punched in the return, unlike earlier where generally for sale made to one registered dealer we used to give the detail in one single entry. एक ही लाइन में आप उसकी डिटेल दे देते थे कि हाँ जी ये टोटल अमाउंट है जो इसको मैंने इस मंथ में या इस क्वार्टर में सेल किया, वो दे देते थे. अब आइटम वाइज डिटेल, अगर 100 आइटम्स आप सेल कर रहे हैं और आपके इनवॉइस में 100 आइटम्स हैं, तो उन 100 आइटम्स की डिटेल आपको देनी पड़ेगी. इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया है. देन आईटीसी क्रेडिट वगैरह आपको तब तक नहीं मिलेगा, वो डीवैट में भी था या बाकी वैट डिपार्टमेंट्स में भी अब काफी केसेस में तो था, बट अब यहाँ और भी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि वो मैचिंग होगी जो सप्लायर रिटर्न अपलोड करेगा उससे. तो रिटर्न इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके लिए हम डेफिनेटली एक अलग से सेशन करेंगे. देन एक और क्वेश्चन है कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेस्ट फॉर माइग्रेशन एक्सेट्रा. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है. आप विंडोज 7 या एक्सपी यूज कर रहे हैं या और इसके आगे के वर्जन यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. जनरली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं अभी तक पता लगा है. और कहीं दिक्कत होती है सो डू लेट अस नो एंड वी विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट दैट. देन समबडी इज आस्क्ड इज देयर एनी कांसेप्ट ऑफ डीम्ड रजिस्ट्रेशन, कि हमें माइग्रेशन करना ही नहीं पड़े और ऑटोमेटिकली हो जाए. ऐसा कुछ नहीं है. हर उस एसएससी को, और ये एक सवाल ये भी आया है कि किन किन एसएससीज के लिए माइग्रेशन की जरूरत है. कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स में रजिस्टर्ड एसएससी है, वैट में, सर्विस टैक्स में, सीएसटी में, एंटरटेनमेंट टैक्स में, लग्जरी टैक्स में, होटल का जो लग्जरी टैक्स वगैरह होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स में,
WCT में किसी में भी आप रजिस्टर्ड हैं। एक सवाल ये आया था कि एक स्कूल है जी, उसकी कोई वैट की रिटर्न्स तो जाती नहीं है और शायद सर्विस टैक्स भी वहां एप्लीकेबल नहीं है, तो वहां सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन वगैरह कराते हैं या कुछ काम कराते हैं, उसके लिए WCT में वो रजिस्टर्ड हैं। तो क्या उनको जरूरत है GST में रजिस्ट्रेशन की? डेफिनेटली। छोटे से छोटे अगर वन टाइम एक्टिविटी के लिए या किसी के लिए भी अगर आपको किसी भी इनडायरेक्ट टैक्स में पहले जैसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, तो आपको GST में भी रजिस्ट्रेशन या माइग्रेशन कराना पड़ेगा। Then what is the fee for migration or enrollment? Thankfully there is no fee. It is free of cost. But अगर आप लेट करेंगे तो डिपार्टमेंट फीस ना लगा दे, तो अभी उसको जल्दी कर लीजिए। Then whether for the states and the center a separate registration is required. Let us say I am registered in CST and in DVAT in Delhi, तो मेरे को एक ही रजिस्ट्रेशन की जरूरत, एक ही एनरोलमेंट या माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरा महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन है, मेरा दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन है, मेरा हरियाणा में भी रजिस्ट्रेशन है, तो तीनों स्टेट्स में मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कराऊंगा या नहीं, अगेन दैट इज अ चॉइस, दैट इज अ डिसीजन टू बी टेकन बाय द बिजनेस इन कंसल्टेशन विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि वो देखना पड़ेगा क्या वाकई आप सप्लाई एक ही स्टेट से हो सकती है, क्या अलग अलग स्टेट्स में हमने रजिस्ट्रेशन जो पहले करा रखा था सॉरी बिकॉज ऑफ द स्टेट बैरियर्स एक्सेट्रा, तो वो सब चीजें तो खत्म हो जाएंगी। तो अगर मैं सप्लाईज एक ही जगह से कर सकता हूँ, सर्विसेज एक ही जगह से प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो मेरे को अलग अलग स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर सप्लाईज मुझे, अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट्स की बात करें, तो छोटे छोटे आइटम्स हैं वो अलग अलग जगह स्टोर करने ही पड़ेंगे, अलग अलग जगह से सेल ऑफ करने ही पड़ेंगे, तो उन केसेस में अलग अलग स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। कोई हैवी मशीन्स हैं, कोई कार्स हैं, अगर एक ही स्टेट से सप्लाई हो सकते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन सफिशिएंट होगा। साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट, साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के केस में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे हम लोग सीख रहे हैं उसी तरह से डिपार्टमेंट भी सीख रहा है। पहले उन्होंने PDF डॉक्यूमेंट्स का साइज 1 MB अलाउ किया था और फोटोग्राफ्स का 100 KB अलाउ किया था। अब वो आप चेक करेंगे अगर ड्रॉप डाउन्स में, तो वो अलग अलग आइटम के लिए, अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग साइज प्रिस्क्राइब कर दिया है, तो उसका प्लीज ध्यान रखिए। बैंक स्टेटमेंट 500 KB तक अलाउड है, शायद उससे भी अभी कम कर दिया है, प्लीज चेक दैट। और बाकी डॉक्यूमेंट्स का कुछ का 1 MB है, कुछ का उससे भी कम है, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। ज्यादा साइज होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। देन सवाल आया है कि ईमेल आईडी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट और द बिजनेस, ये तो हमेशा से सवाल रहा है और प्रॉब्लम रही है, और कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देना चाहते हैं डिपार्टमेंट्स की साइट पे, क्योंकि कहते हैं उन्हें तो एसएससी को तो समझ ही नहीं है, वो तो फिर मेल आएगी या उसको SMS आएगा, उस पता ही नहीं लगेगा, ना हमें बताएगा। तो वो आपका कंसर्न बिल्कुल जायज है। But what you can do, as the department is also giving you the option that you can register separately as a professional. आप एज प्रोफेशनल रजिस्टर कर सकते हैं सेपरेटली, लेकिन जो माइग्रेशन में, जो एनरोलमेंट में आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है, वो आपको एसएससी का ही देना चाहिए, उन्होंने स्पेशली कहा है। सो प्लीज accept that and give the details of the authorized signatory of the business only. Then you have to give the PAN details of the directors, authorized signatories, etc. In that case, अगर कुछ आप information ऐसी देते हैं, नाम अगर फर्क है और पैन कार्ड पे जो नाम है या पैन कम्युनिकेशन अगर किसी और लेटर वगैरह से किया गया है, उसमें नाम में फर्क है, तो मिसमैच की डिटेल्स आ सकती हैं। मिसमैच का आपको लेटर आ सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से, ईमेल आ सकता है, तो उस केस में जो पैन कार्ड में आपकी डिटेल्स दी हुई हैं वही आप फिल करिए अपने जो नेम में दे रहे हैं। जैसे राजकुमार शर्मा है तो राज शर्मा मत लिखिए, राजकुमार शर्मा ही लिखिए जो आपके पैन कार्ड में लिखा हुआ है, अदरवाइज ये दिक्कत आ सकती है। What about the provisional registration certificate? When will we get the provisional registration certificate? क्योंकि enrollment तो अभी हम कर रहे हैं, immediately आपको provisional registration certificate नहीं मिलेगा. It will be available to you online from the appointed date onwards, जो अभी expected 1st of April है, तो तब से ही आपको provisional registration certificate मिलेगा। और आप पूछेंगे कि फाइनल कब मिलेगा? फाइनल मिल जाएगा जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो जाएंगे, जीएसटी एक्ट लागू हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा, और उसके 6 महीने के अंदर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर सही डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए, सही डिटेल्स नहीं हुए, तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। सो प्लीज
let us be very careful in submission of the information and documents. Then बैंक अकाउंट हमें एक सबमिट करना है या एक से ज्यादा करना है? जनरली पहले डिपार्टमेंट्स में एक ही लेते थे रिफंड वगैरह के लिए. अब आपको पता है इनकम टैक्स रिटर्न के लिए भी सारे बैंक अकाउंट्स मांग रहे हैं, तो बाकी डिपार्टमेंट्स भी सजग हो गए हैं थोड़े से, और वो कह रहे हैं कि भाई सारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे दो. लेकिन वो साइट पे उनके थोड़ा सा प्रेशर ना आ जाए या डेटा ज्यादा ना हो जाए, इसकी वजह से वो कह रहे हैं अगर 10 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स हैं तो आप 10 की डिटेल्स दे दीजिए, बाकी की देने की जरूरत नहीं है. तो मोस्ट ऑफ द पीपल के तो सारे ही कवर हो जाएंगे, बट अगर आपकी बड़ी बिजनेस है और उसमें 10 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स हैं तो 10 तक की डिटेल्स दे दीजिए. अब सवाल एक और है कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में उसी स्टेट के देने हैं, गोडाउन्स हैं या सेल ऑफिसेज हैं, या दूसरी स्टेट्स के भी देना है? पहले क्या करते थे आप? पहले तो मेरे ख्याल से बाकी स्टेट की रजिस्ट्रेशन भी मांगते थे, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट्स का, दोनों वैट डिपार्टमेंट्स का आपस में कोई कम्युनिकेशन एज सच नहीं होता था. बट अब ये जीएसटीएन है, ये तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है जो सारी इंटरलिंकिंग है सभी स्टेट्स की. तो यहां आपको जिस स्टेट का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं उसी के प्लेसेस ऑफ बिजनेस, उसी के एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस की डिटेल्स देने की जरूरत है, बाकी स्टेट्स के देने की जरूरत नहीं है. अगर दिल्ली का कर रहे हैं तो दिल्ली की दीजिए, जब महाराष्ट्र का करेंगे तो महाराष्ट्र का दे दीजिए. जहां उन्हें जरूरत होगी वो आपस में चेक कर लेंगे, डेटा ले लेंगे. दोनों जगह देने की जरूरत नहीं है, दे भी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में स्टेट फिक्स्ड है, वहां आप चेंजेस नहीं कर सकते. So only for that state you have to give. और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको देने की मैंडेटरी नहीं है. हो सकता है आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो ही ना, आपका तो एक ही शॉप है या एक ही ऑफिस है या एक ही फैक्ट्री है जहां से आप माल बनाते भी हैं और शायद बेचते भी हैं. तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो देना मैंडेटरी है. एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इज नॉट मैंडेटरी टू बी गिवन, सो इट इज ऑप्शनल. इफ इट इज, यू प्लीज गिव दैट इंफॉर्मेशन. Then somebody has asked what ward is to be given under the ward. जो आपका नॉर्मल डीवैट का या एमवैट का वार्ड है उसकी डिटेल दे दीजिए. कुछ केसेस में डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, तो अलग अलग तरीके कर रहे हैं. जैसे एमवैट ने अपनी साइट पे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, डीवैट में जो आपका वार्ड है वही आपको डालना है, तो वो रेलेवेंट स्टेज के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या फैसिलिटी उन्होंने दी है. देन सवाल एक आया है कि ये इंफॉर्मेशन हम एक ही बार में भर सकते हैं या मल्टीपल सेशंस में भर सकते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, शायद आप लेट आए होंगे, कि आप मल्टीपल सेशंस में भर सकते हैं. और अगर जीएसटीएन की साइट की बात करें, जो कॉमन पोर्टल है, वहां जाके आपको कोई भी एक टैब भरना है तो उस पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो भी मैंडेटरी है और जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको भरने ही भरने पड़ेंगे. उसके बिना आप प्रोसीड या सेव नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर आप अपना पोर्टल बनाते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहां ये फैसिलिटी होगी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट यू विल बी एबल टू अपलोड. वहां कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है. बाद में आप अपलोड कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं, या आपका क्लाइंट आपके पोर्टल पे जाके आप उसको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दे देंगे तो वो आपकी साइट पे जाके उसको अपडेट कर सकता है, अपलोड कर सकता है. लेकिन मल्टीपल सेशंस में ये पॉसिबल है. साइट पे लेकिन थोड़ा सा लिमिटेशन है कि सारी इंफॉर्मेशन जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है वो होनी ही होनी चाहिए. So these were the queries and let me see if there are some other queries. वैसे टाइम हमारा अब हो गया है. डॉक्यूमेंट्स वगैरह का मैंने काफी डिटेल में बता दिया है. अगर रेंटेड प्रेमिसेस हैं तो रेंट एग्रीमेंट का और साथ में कोई ओनरशिप प्रूफ का देना पड़ेगा. ओन प्रेमिसेस हैं तो सिर्फ ओनरशिप प्रूफ, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट वगैरह आपको देनी पड़ेगी. किसी और के प्रेमिसेस हैं, आपके किसी रिश्तेदार के, आपके फादर के या आपके अंकल के कोई प्रेमिसेस हैं आप यूज कर रहे हैं, तो कंसेंट लेटर और ओनरशिप प्रूफ साथ में देना पड़ेगा. तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है. बैंक स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेंगी अगर आप बैंक के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बैंक आप अपलोड कर रहे हैं. सो दीज वर द क्वेरीज एंड आई थिंक काफी अच्छा सेशन रहा एंड आपकी तरफ से भी बहुत अच्छी क्वेरीज आई हैं. एंड आई एम श्योर अ लॉट मोर क्वेरीज आर देयर. और क्वेरीज तब आएंगी जब आप काम करना चालू कर देंगे. और काम करना चालू कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है इमीडिएटली, पर्टिकुलरली जिन लोगों का ऑलरेडी खत्म हो गया. अब ये कोई इनडेफिनेट विंडो नहीं है.
ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स ने मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए हैं, लाइक महावैट के केस में महाराष्ट्र वैट ने ऑलरेडी मैसेज भेजना शुरू कर दिया है कि शायद उनका टाइम विंडो खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ा सा एडिशनल वो टाइम दे रहे हैं, बट वो कह रहे हैं कि आगे बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से दिल्ली वैट के भी रोज मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई आप टाइमली रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ और ये बाकी जो जितने नॉर्दर्न J&K, ये सब जगह 16 से 30 दिसंबर तक का टाइम लिमिट है। हो सकता है 2-4 दिन का आपको और एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं है। सो प्लीज इसको टाइमली बेसिस पे कर लीजिए, और जब करेंगे तभी पता लगेगा क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उससे पहले तो आपको पता नहीं लगेगा। आप किसी से कितने भी बात कर लीजिए, कितने भी सेमिनार्स, वेबिनार्स अटेंड कर लीजिए, बट वंस यू डू द वर्क योरसेल्फ, देन यू विल नो व्हाट आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी ऑब्टेन्ड। तो वो सब चीजें आपको अभी करनी पड़ेंगी। जितना लेट करेंगे तो चांसेस वही होंगे, जैसे आपकी ITR जब लास्ट मोमेंट पे फाइल करते हैं तो गलतियां हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हमने पहले से इतनी प्रिपरेशन नहीं कर रखी, एसएससी ने हमें टाइम पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो वही चीजें यहां भी हो जाएंगी। तो जब लास्ट मोमेंट आएगा, जब प्रेशर आएगा, तो हम जल्दबाजी में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। हो सकता है किसी की फोटोग्राफ किसी की जगह लगा दे, किसी की बैंक स्टेटमेंट किसी और की जगह। सिस्टम को थोड़ी पता है, सिस्टम के लिए तो हर डॉक्यूमेंट एक जैसा है। वो तो सिर्फ बताएगा कि साइज ये ठीक नहीं है, ये एक MB लगा रहे हैं या तो 500 KB ही अलाउड है। अब उसे थोड़ी पता है फोटोग्राफ आपने रामलाल की लगाई है या श्यामलाल की लगाई है। सो प्लीज स्टार्ट नाउ। और इसमें किसी तरह की भी आपको हेल्प की जरूरत है, सो आप मेरी आईडी पे rajiv@webtel.in या हमारी GST वाली जो आईडी है उस पर आप कर सकते हैं। ये बाद में जो आप रजिस्ट्रेशन जहां से किया था, वो आपको ईमेल आईडी दूसरे भी मिल जाएंगे। सो विल डेफिनेटली ट्राई एंड हेल्प यू आउट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी पेशेंट हियरिंग।